Hello everyone. This is the 12th economics and name of the chapter is elasticity of demand. Elasticity demand refer to responsiveness of demand to a change in a price. This concept given by Dr. Alfred Marshall, and the elasticity demand, it is a technical term which describe the responsiveness of change in a quantity demanded to fall or rise in its price. So price elasticity of demand, cross elasticity of demand, and income elasticity of demand, these are the three types of इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड विद द टाइप्स. So see what the definition of price elasticity of demand. This definition is given by Dr. Alfred Marshall. It is a ratio of proportionate change in a quantity demanded of a commodity to a given proportionate change in its price. प्राइस में जो चेंज आ जाता है उसी की वजह से जो डिमांड में चेंज आ जाता है उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. जो अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स लाइक इनकम है, पॉपुलेशन है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स है, आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट है. सो देयर फोर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिटर्न एज proportionate change in quantity demanded divided by proportionate change in price. So there are 5 types of elasticity. It's depending on the degree of responsiveness. So first is perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, unitary elastic demand, relative elastic demand, or relative inelastic demand. So let's move the first types of elasticity is price elasticity is perfectly elastic demand. And see the definition of perfectly elastic demand is when a slight or a zero change in a price of commodity bring about an infinite change in quantity demand, and then it is called perfectly elastic demand. प्राइस कितना चेंज हो रहा है? स्मॉल चेंज इन अ प्राइस बट an infinite change in quantity demand, it means tremendous change in quantity demand, then it is called a perfectly elastic demand. For example, हम ऐसे कहते हैं कि if price change 0.1 price change 0.1, then quantity demand will be changed 10%, 100%, and the more 200% change in quantity demand. So it is said to be perfectly elastic demand. मतलब प्राइस में स्मॉल चेंज आ जाने से डिमांड बहुत ज़्यादा या ट्रिमेंडस चेंज हो जाती है, उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं. सो ये जो डिमांड है, ये जो डिमांड कर्व आपको दिख रहा है, इट इज़ अ थेरोटिकल कंसेप्ट. प्रैक्टिकली does not exist in this concept in real life, does not exist there. It is only theoretical concept. फॉर एग्जाम्पल सपोज हम कहते हैं कि 10% प्राइस फॉल मे लीड एन इन्फिनिट राइज इन डिमांड. सो यहाँ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व जो दिख रहा है वो डिमांड कर्व रिप्रेजेंट बाय अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. यहाँ जो डिमांड कर्व हमें दिख रहा है वो एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टली पैरेलल है, और ये जो टाइप्स है वो रियल लाइफ में हमें देखने को नहीं मिलता है. तो इसका मतलब है perfectly elastic demand cannot be measured, and this types is does not exist in real life. So here first type is perfectly elastic demand. Second type is a perfectly inelastic demand. In the perfectly inelastic demand, when a percentage change in price has no effect on quantity demanded of a commodity, इट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड. देखो प्राइस कितना चेंज हो रहा है. सपोज हम कहते हैं कि चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ब्रिंग अबाउट नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ब्रिंग अबाउट नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, it is called perfectly elastic demand. This is also known as the zero elasticity of demand. Suppose for example in this case the demand curve would be a vertical straight line parallel to y-axis. See the diagram, there is the demand curve would be vertical straight line parallel to y-axis, and this types is occasionally occur in a life
मैं ऑलमोस्ट हम ऐसे कहते हैं कि सॉल्ट और मिल्क जो एग्जाम्पल है, मीन्स रियल सिचुएशन में इन प्रैक्टिस सच सिचुएशन रेयरली ऑकर द टाइप्स ऑफ डिमांड. फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर सॉल्ट, डिमांड फॉर मिल्क. सो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो उसे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं. कि डिमांड फॉर सॉल्ट, डिमांड फॉर मिल्क is the example of this types is the perfectly elastic demand. जो हम कह सकते हैं कि सपोज जो वन फैमिली है और उसकी जो मंथली सॉल्ट की डिमांड है, उसके प्राइस का ज़्यादातर इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जितना मंथली कंजप्शन है ऑफ द सॉल्ट उतना ही हर एक फैमिली वो कंजप्शन करती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जब प्राइस चेंज हो जाता है तो डिमांड में नो चेंज है, तो उसे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं. थर्ड जो टाइप है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में हम कह सकते हैं कि व्हेन परसेंटेज change in a price leads to proportionate change in a quantity demanded, then demand is said to be unitary elastic. जब प्राइस में चेंज हो जाता है कि एग्जैक्ट इक्वल चेंज जो डिमांड में आ जाता है, तो इट इज़ सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक. और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, तो हियर इज इक्वल है, ईडी इज इक्वल कोएफिशिएंट वैल्यू है ऑफ इलास्टिसिटी. एंड द in this case the demand curve is a rectangle hyperbola. In this case demand curve is rectangle hyperbola. See the diagram here. A 50%, for example 50% fall in price of a commodity leads to 50% rise in price of commodity. म्हणजे 50% प्राइस कम होगी तो 50% डिमांड बढ़ जाएगी. में एग्जैक्ट इक्वल चेंज है क्वांटिटी डिमांड में, सो इसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं. और ये जो डिमांड कर्व है ये रेक्टेंगल हाइपरबोला कर्व है. तो हम कह सकते हैं कि प्राइस फॉल, सपोज सी द डायग्राम कि यहाँ दिखा है कि इन दिस डायग्राम व्हेन प्राइस फॉल बाय 50%, दैट इज फ्रॉम P and P1, and quantity demanded rise by 50% from Q and Q1, which is the same proportion to change in the price. जो सेम प्रोपोर्शन में प्राइस चेंज हुआ है, तो इसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं. कि प्राइस जितना परसेंट कम होती है डिमांड उतनी ही परसेंट इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल चेंज आते यहाँ हमें, सो इसे यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं. नेक्स्ट है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड. और रिलेटिव इलास्टिक डिमांड में हम कहते हैं कि व्हेन चेंज इन अ प्राइस ऑफ कमोडिटी ब्रिंग अबाउट more than proportionate change in quantity demand for, then it is called a relative inelastic demand. अब जहाँ जो डिमांड है इस जो टाइप्स है, यहाँ जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस. जितना प्राइस में चेंज आता है उससे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ जाता है, तो उसे रिलेटिव इलास्टिक डिमांड कहते हैं. सी द डायग्राम हियर. इन द डायग्राम जो प्राइस है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड है. सपोज हम कहते हैं कि यहाँ 50% प्राइस फॉल हुई है, तो 100% क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई है. और ये जो डिमांड कर्व है, यहाँ हमें डिमांड कर्व जो दिख रहा है वो फ्लैटर है. डिमांड कर्व जो है वो फ्लैटर शेप में है. और यहाँ जो प्राइस फॉल बाय 50% from P and P1 and demand rise 100% from Q and Q1. सो यहाँ जो ये जो डिमांड रिप्रेजेंट है ग्रेजुअली सोपिंग डिमांड कर्व जो है वो फ्लैटर डिमांड कर्व है. और ये भी टाइप्स जो है वो डज नॉट एग्जिट इन रियल लाइफ. दिस टाइप आल्सो डज नॉट एग्जिट इन रियल लाइफ. जो लास्ट है रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड. रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड में व्हेन अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी bring about a less than proportionate change in quantity demanded, it is called relative inelastic demand. इसमें हम change in quantity demanded less than
चेंज इन प्राइस। सो यहाँ जो डिमांड कर्व हमें दिख रहा है वो स्टिपर है, मीन्स रिप्रेजेंट अ शार्पली शॉपिंग डिमांड कर्व है, और दिस टाइप इन एग्जिट इन रियल लाइफ। हमें जो ये जो डायग्राम है इसमें व्हेन प्राइस फॉल बाय 50%, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द P और P1 द डिमांड राइज ओनली बाय 25% फ्रॉम Q and Q1. So this also exist in real life. So these all are the all 5 types of price elasticity. First is first types है relative elastic demand, second perfectly elastic demand first type है, second type है perfectly inelastic demand, third है unitary elastic demand, fourth है relative elastic demand और fifth है relative inelastic demand. ये जो सब टाइप्स है जो हम अभी देख रहे हैं कि ये प्राइस के सब जो टाइप्स है, ये प्राइस में कितना चेंज आ जाता है उसी की वजह से जो टाइप्स है वो सब टाइप्स है। मीन्स यहाँ चेंजिंग डिटर्मिनेंट कौन सा है, तो प्राइस है। सपोज हम जो ध्यान में रखने के लिए थोड़ा बहुत जग देखते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या है, एक सिंबल क्या है, तो ईडी अल्फा है, और जो चेंज है तो इन्फिनिट चेंज है या ट्रिमेंडस चेंज है, और डिमांड कर्व का शेप कैसा है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। परफेक्टली इनइलास्टिक में हम देखते हैं क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व में ईडी ज़ीरो है, ईडी इक्वल ज़ीरो है, और डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता है, नो चेंज इन डिमांड, एंड वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। यूनिटरी इलास्टिक में ईडी इक्वल 1 है, एग्जैक्ट इक्वल चेंज आ जाता है, और डिमांड कर्व जो है तो रेक्टेंगल हाइपरबोला कर्व है। देन रिलेटिव इलास्टिक डिमांड में मोर देन 1 है और मोर देन प्रोपोर्शनेट है, और डिमांड कर्व जो है फ्लैटर कर्व है। रिलेटिव इलास्टिक में लेस देन है, प्रोपोर्शनेट, और डिमांड कर्व जो है स्टिपर कर्व है। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। प्राइस में चेंज आ जाने से उसकी वजह से जो डिमांड में चेंज आते हैं उसे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं, और ये प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के 5 टाइप्स है। थैंक यू।